લોહે સૌહરિહંતાણમ નમો લોહે સૌહરિદાનમ નમો લોહે સૌઆયર્યાણમ નમો લોહે સૌજયાણમ નમો લોહે સૌત્રિકાવતી સાવનમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિન કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પરમાત્મ પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 97 સુધી સળંગ ગાથા 224 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે. આજે 98મી ગાથા લઈએ છીએ. આચાર્ય ભગવાનની 98મી ગાથાના ઉબોધઘાતમાં કહે છે कि आगे जीवों का ज्ञान दर्शन लक्षण बताते हैं. जीवोનું જ્ઞાન દર્શન લક્ષણ છે એ વાત કરે છે. ગાથા 98 જીવાના લક્ષણમ જીનવરે ભાષિતમ દર્શનમ જ્ઞાનમ તેન ક્રિયતે વેદ તેષા યદિ મનસી જાતો વિવાદ. ગાથાના નિવાર્થમાં કહે છે कि जीवाना लक्षणम जिनवरई दर्शनम ज्ञानम भाषितम. जीवों का लक्षण जिनेन्द्र देव ने दर्शन और ज्ञान कहा है. तेन इसलिए तेसा भेद न क्रियते. इसलिए उन जीवों में भेद मत कर. यदि मनसी विभात हो जात हो, अगर तेरे मन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, अर्थात हे शिष्य तू सबको समान जान. सो कहे छे कि जीवों का लक्षण जिनेन्द्र देव ने दर्शन ज्ञान कहा है, इसलिए उन जीवों में भेद मत कर. अगर तेरे मन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, अर्थात हे शिष्य तू सबको समान जान. तू ज्ञानी हुआ है तो फिर जीवों में भेद मत कर. गुजराती में गाथा लईए. जीवनु लक्षण जिनवरे भाख्यू दर्शन ज्ञान તેથી ન ભેદ કરાય ત્યાં જો મન પ્રગટ્યો ભાણ. એના અર્થમાં કહે છે જીવોનું લક્ષણ જ્ઞાન દર્શન છે એમ શ્રી જીનવર દેવે કહ્યું છે. જીવોનું લક્ષણ જ્ઞાન દર્શન છે. જ્ઞાન દર્શનની ચેતના એ જીવનું લક્ષણ છે અને દરેક જીવનું એવું જ લક્ષણ છે. દરેક જીવના ગુણ સરખા જ છે. દરેક જીવ અનંત ગુણનો સમૂહ છે પણ બધા ગુણ એક સરખા છે. એવું નથી કે કોઈ જીવની અંદર સ્પર્શ રસ ગંધ એવા ગુણ પણ હોય, એવું ક્યારેય હોય નહીં. બધા જીવના ગુણ સરખા જ હોય, બધામાં ચેતના જ હોય. એટલે બીજા દ્રવ્યના ગુણ, જે જીવ સિવાય બીજા દ્રવ્યના ગુણ છે એ કોઈ જીવની અંદર જોવા મળે એવું કઈ હોતું નથી. એટલે દરેક જીવના ગુણ એક સરખા છે. આ તો મૂળભૂત વાત છે. 6 પ્રકારના દ્રવ્ય કયા અને એમાં જીવ દ્રવ્ય કહ્યું તો એ અનંત જીવ છે. બધા એ અપેક્ષાએ ગુણની અપેક્ષાએ તો સરખા જ છે. એટલે બીજા દ્રવ્યથી, બીજા 5 દ્રવ્યથી જીવ દ્રવ્ય કેવી રીતે જુદું પડે તો કે એ ચેતના છે. એનામાં જ્ઞાન દર્શનની ચેતના છે. અહીંયા કહે છે કે જીવોનું લક્ષણ જ્ઞાન દર્શન છે એમ શ્રી જીનવર દેવે કહ્યું છે. તેથી જો તારા મનમાં જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થયો હોય તો તું તે જીવોમાં ભેદ ન પાડ. જો તને જ્ઞાન થયું હોય, તને સાચી સમજ આવી હોય તો હવે તું જીવોમાં ભેદ ન પાડ. નાના મોટા નહીં જાણ, પણ સર્વને સમાન જાણ. આગળ વિસ્તાર કરીને સમજાવે છે કે જો કે વ્યવહાર નહીંથી સંસાર અવસ્થામાં
મતિ આદિ જ્ઞાન તથા ચક્ષુ આદિ દર્શન જીવનું લક્ષણ છે, તો પણ નિશ્ચયથી કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન જીવનું લક્ષણ છે, એમ જીનવર દેવે કહ્યું છે. વ્યવહારથી દેહ ભેદ હોવા છતાં, જુદા જુદા પ્રકારના દેહ છે છતાં કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન રૂપ નિશ્ચય લક્ષણથી ભેદ નથી. જીવમાં આ ગુણ છે, જ્ઞાન અને દર્શન, અને એની ગુણ પ્રગટતા થાય છે તો કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનની પર્યાય જીવને પ્રગટ થાય છે. એટલે એ અપેક્ષાએ સર્વ જીવો સમાન છે, કોઈ નાના મોટા નથી. જો તારા મનમાં વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થયો છે, એટલે કે તને સ્વસંવેદન જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, એટલે તું સમ્યક દ્રષ્ટિ થયો છે, અને મોહ નિંદ્રાના અભાવથી આત્મબોધરૂપ પ્રભાત પ્રગટ્યું છે, એટલે કે તારું મિથ્યાત્વ ચાલી ગયું છે અને તને આત્માનું જ્ઞાન થયું છે, સ્વરૂપનું ભાન થયું છે, એવું આત્મબોધરૂપ પ્રભાત પ્રગટ્યું છે, તો તું સર્વને સમાન દેખ, બધાને સરખા જો, જીવ માત્રને સમાન જો, એની પર્યાય સામું લક્ષ ન કર. આગળ પણ કહે છે કે જેમ સોનાની રાશિમાં રહેલું સર્વ સોનું સમાન જ છે, તો પણ થોડું સોનું ગ્રહણ કરવાથી સર્વ સોનું ગ્રહણ કરાતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે સોનાના પ્રદેશો જુદા જુદા છે. તેમ સર્વ જીવો કેવળ જ્ઞાન દર્શનની અપેક્ષાએ સમાન છે, તો પણ એક જીવને ગ્રહણ કરવાથી સર્વ જીવો ગ્રહણ કરાતા નથી, કારણ કે પ્રત્યેક જીવના પ્રદેશો ભિન્ન ભિન્ન છે. સારાંશ કે કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન ઉપયોગની અપેક્ષાએ સર્વ જીવો સમાન છે, તો પણ પ્રત્યેક જીવના પ્રદેશો જુદા જુદા છે. એક જીવના પ્રદેશ અને બીજા જીવના પ્રદેશ અને ત્રીજા જીવના પ્રદેશ એ બધાના પોતપોતાના પ્રદેશ છે, અને બધાને પ્રદેશ જે છે જુદા જુદા છે. એટલે એમ નથી કહેવું કે જુદી જુદી જાતના છે. કહેવાનો આશય એ છે કે દરેકના પોતપોતાના પ્રદેશ છે, એટલું જ કહેવું છે. બધાને અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. તો આ રીતે આ 98મી ગાથા છે. આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 6 વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 167. आगे जीवों का ज्ञान दर्शन रक्षण कहते हैं. जीवन लखणों जीणवरे भाष्यों दंशन नाणु तेण न की जई बेवू. ભગવાન જીનવરે જીવનું લક્ષણ જ્ઞાન દર્શન કહ્યું, તો પછી હવે ભેદ ન કહીશ આ જીવ આવો ના જીવ આવો, બધા જ્ઞાન લક્ષણ. મારે પણ ગજબ કામ કર્યા છે ને. તેણ કીજઈ ભેવું તો જય મણી જાઓ વિહાણું. આહા, એવું કે છે તારો સૂર્ય ઉગી ગયો છે, જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય ઉગી ગયો, તો હવે ભેદ પાડીશ નહીં, બધા જ્ઞાન દર્શન વાળા હરખા છે. એમ કે હા, जीवों का लक्षण शब्दार्थ जिनेन्द्र देव ने दर्शन ज्ञान कहा. देखूं ने जाणવું એનો સ્વભાવ એનું લક્ષણ કહ્યું. इसलिए इस जीवों में
ભેદ મત કર કે આ અલ્પ જ્ઞાની છે ના અલ્પદર્શી છે ના રાગ એવું રહેવા દેવે. હા હા, કેટલો સંભાવ. हाँ, ज्ञान दर्शन कहा है भगवान ने, उन जीवों में भेद न कर. अगर तेरे मन में विभात था तो ज्ञान रूपी श्री का उदय हो गया है. सम्यक ज्ञान जो तने उग्યું હોય તો ભેદ ન પાડે. એમ શું અહીંયા પેલું કેવું હતું ને આમ આવ્યું નીચલી લીટી નીચલી છે નીચલીમાં तेरे मन में वितराग निरीकरण संसर्ग ज्ञान का सूर्य का उदय हुआ है. टीका नीचा से आ तो शब्दार्थ से ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है. हे शेष तुम सबको समान जान. टीका लेवा છે પછી 98 ચાલે છે ને ભાવાર્થ परमात्मा प्रकाश गाथा 98 चलती है. भावार्थ अध्यात्म विषय है सूक्ष्म. अनंत काल थी ये आत्मा अंदर ज्ञान दर्शन लक्षण संपन्न है. ठिकाने ज्ञान दर्शन संपन्न आत्मा है. ऐसा कभी निर्णय किया नहीं, अनुभव किया नहीं. समझ में आया? तो कहते हैं कि यद्यपि व्यवहार नहीं से संसारी अवस्था में संसारी दशा में मति ज्ञान आदि है. मति ज्ञान पर्याय अल्प है और चक्षुआदि दर्शन भी है. ये लक्षण कहे जाते हैं व्यवहार से. हाँ, भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप आत्मा है. उसका व्यवहार नहीं से मति ज्ञान चक्षु दर्शन आदि पर्याय लक्षण कहने में व्यवहार से आता है. हाँ, तो भी निश्चय नहीं कर केवल दर्शन केवल ज्ञान यही लक्षण है. हाँ, केवल ज्ञान दर्शन पर्याय नहीं हो. हाँ, भगवान आत्मा जिनवर परमेश्वर एम कहते हैं ना. देखो जिनवर ही भाषियों जिनवर वितराग त्रिलोकनाथ नहीं देव धनी में ऐसा आया कि दौसण नानु लखणु. हाँ, भगवान आत्मा केवल दर्शन केवल ज्ञान जी टिकाली स्वभाव ये उसका लक्षण है. समझ में आया? व्यवहार रत्न जो विकल्प राग है वो तो उसका लक्षण ही नहीं. अने मति ज्ञान चक्षु दर्शन आदि की पर्याय है ये व्यवहार लक्षण है. हाँ, निश्चय में तो भगवान आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन ये उसका लक्षण है. समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात वही. वो आत्मा निमित्त से तो जानने में आता नहीं. अने व्यवहार रत्न दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव उससे भी जानने में आता नहीं.
और व्यवहार नहीं से मति ज्ञान आदि चक्षु दर्शन आदि की पर्याय से जानने में आता है तो व्यवहार ही तो है। टिकाली भगवान ज्ञान में आनंद, ज्ञान में दर्शन, उसका टिकाली स्वभाव, ज्ञान में दर्शन, केवल ज्ञान। ये जिसका लक्षण उससे जानने में आता है। समझ में आया? योगींद्र देव 1300 वर्ष पहले दिगंबर मुनि हुआ, कुंकुंडाचार पीछे हुआ है, वो कहते हैं। ऐसा जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है? गणधर ने एक भवतारी इंद्रुनी सभा में भगवान जिनवर देव की ये वाणी थी, देव धनियो थी कि तेरी चीज निमित्त से तो जानने में आती नहीं, व्यवहार विकल्प दया दान भक्ति उससे भी जानने में आता नहीं, व्यवहार नहीं से तो मति ज्ञान चक्षु दर्शन से जानने में आता है, सब व्यवहार नहीं से कहने में आता है। निश्चय से तो तिकाली ज्ञान दर्शन लक्षण, टिकाली ज्ञान उपयोग दर्शन टिकाव, वो लक्षण से जानने में आता है, ऐसा जिनवरे कहा है। समझ में आया है? निश्चय नहीं कर, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, यही लक्षण है। उसका अर्थ के लक्षण से जानने में है। टिकाली परिणाम भाव, उसमें जो केवल ज्ञान केवल दर्शन टिकाली, ये लक्षण से जानते पर ये लक्षण से जानते। झीणी बात बाप वितराग मार्ग, जिनवरनो मार्ग अलौकिक है। केम शेठ ने बात नहीं कोशेष समझ में आते हैं? आ બધું કેમ અવધિ કાઢ્યું બધું કે એમ કે आत्मा ये वस्तु है, उसमें ज्ञान दर्शन त्रिकाली स्वभाव है। तो वो आत्मा त्रिकाली ज्ञान दर्शन लक्षण से जानने में आता है, जानने में पर्याय में, पर ये ज्ञान दर्शन लक्षण त्रिकाली उससे जानने में आता है, यूं कहते। सूक्ष्म बात भाई, परमात्मा प्रकाश दिगंबर संत ये केवड़ी ना किड़ाए तो उसकी वाणी अध्यात्म बहुत सूक्ष्म है। इसलिए अर्थात जिनेन्द्र देव वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर टिकाली ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, ये निश्चय से है। टिकाली ज्ञान दर्शन लक्षण है, ये टिकाली है, पर उसका निर्णय करने वाली पर्याय वर्तमान है। क्या कहते हैं, समझ में आया? केवल दर्शन केवल ज्ञान जी गुण आत्मा का लक्षण, उसका कोई लक्षण दया दान भक्ति इसका लक्षण नहीं, ये तो उपाधि विकार है। समझ में आया? टिकाली भगवान आत्मा
उसका टिकाली ज्ञान दर्शन लक्षण એ લક્ષણ દ્વારા એટલે ગુણની ધ્રુવતા દ્વારા ગુણીને જાણી શકાય છે. હા 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 સમજાણું કાંઈ આવો માર્ગ છે શેઠ. અત્યારે તો માણસને માર્ગ વીખી નાખ્યો આખો. હા જીનવર દેવ પરમેશ્વર અનંત અનંત જીનવરો તીર્થંકરો એમ કહેતે હૈ ને પાઠ. જીણવર એવું ભાસ્યું હે જીવઈ લખણું જીણવર ભાસ્યું દંસન નાણું. હા હા ગજબ કર્યું જનકનું. खरे अंदर पर्याय गुण को आत्मा है ऐसा ज्ञान दर्शन टिकाली है वो आत्मा. ये बात कहीं टिकाली गुण पर्याय टिकाली गुण से निर्णय नहीं होता. निर्णय तो पर्याय होता है पर पर्याय का लक्ष्य क्या है? હા 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 ગજબ વાત છે. આવી વાત टिकाली ज्ञान दर्शन लक्षण है तो टिकाली है तो ध्रुव है. मति ज्ञान आदि व्यवहार ने कर निकाल दिया. ये तो व्यवहार है. हाँ हाँ निर्णय वस्तु जो है वस्तु भगवान आत्मा उसका टिकाली उपयोग दर्शन ज्ञान उपयोग लक्षण है. वो लक्षणम है ने तत्व सूत्र उमा स्वामी દર્શન લક્ષ્મી પર પણ બહારની વ્યવહારની વાતો એકલી તત્વ શું છે એની ખબર ન પડે. હા અહીંયા તો પરમાત્મા જે પરમાત્મા જીનવરે કહ્યું તે અહીંયા સંતો કહેતે હૈ. ऐसे जिनवरे वर्णन किया है. निर्णय करने वाला ज्ञान पोते लक्षण है. निर्णय करनारा लक्षण नहीं लक्षण ટીકાળી લક્ષણ મતિ જ્ઞાન લક્ષણ કેવું વ્યવહાર કર્યું. हाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वर्तमान सम्यक पर्याय है. वो तो व्यवहार हुआ. वर्तमान पर्याय है ने અને वो ટીકાળી જ્ઞાन दर्शन नीचे हुआ. हाँ हाँ सूक्ष्म છે થોડું. व्यवहार नहीं से मति ज्ञान आदि तत्वादि है तो पण निश्चय नहीं से अंदर ध्रुव में लक्ष्य करने से ये ज्ञान दर्शन ध्रुव वो ध्रुव का लक्षण है. आत्मा का वो लक्षण है. हाँ 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 कैसी. इसलिए व्यवहार नहीं कर देह से भेद होने पर भी इधर शब्द फेर है अर्थ में पाठ में एम है. व्यवहार दे भेदे पी एम છે ये अर्थ में जरिक शब्द फेर थी गयो. व्यवहार नहीं कर देह में भेद होने पर भी केवल ज्ञान दर्शन लक्षण का समान है. क्या किया समझ में आया? हाँ तो विकराल परमेश्वर भाई परमेश्वर जिनवर कोने किसको कहे. ये साधारण लोग को एम मानी भगवान आवा भगवान पण बापू भगवान ने समझे ना ये बहुत अपूर्व बात है.
हाँ, जानवर जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में 3 काल 3 लोग अपनी पर्याय में जानने में आया, पर्याय को जानने में आया। भेद होने पर भी निश्चय से भेद नहीं है, सब रहेंगे। ये नहीं सही नहीं, भेद ये सब भेद थी व्यवहार नहीं कर देश से भेद होने पर भी एम नहीं, देह भेद से भी भेद होने पर भी एम थे भाई समझाई છે કાંઈ? આવો ઉપદેશ ધર્મ, हाँ वितरागનો मार्ग आवो છે। यहाँ तो के भक्ति करना, पूजा करना, व्रत करना, तप करना, भाई ये बड़ी क्रियाओं तो रागनी क्रिया है, ये वितराग मार्ग ही नहीं। समझ में आया? वितराग जिनवर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा एम कहते हैं। निश्चय केवल ज्ञान केवल दर्शन है उसका लक्षण है, उससे लक्ष्य में आता है। बराबर करनार पर्याय, निर्णय करनार पर्याय, पर पर्याय लक्षण ज्ञान दर्शन टीका उसे जाने में आता है, ऐसा जाना। हाँ अरे आखिरी बातों परमात्मा प्रकाश यार बराबर भेद पड़ गया ने आ लक्षण ने ये लक्षण, आ लक्षण ने ये लक्षण, ये लक्ष्य એટલું સમજાને भेद है। लक्षण ने लक्षण व्यवहार भेद है, निश्चय तो लक्षण ने लक्षण एक रूप है। यहाँ तो जानने में आता है, बताना है ना, तो जानने में तो पर्याय में आता है, पर वो पर्याय टिकारी ज्ञान दर्शन लक्षण वालों आदर એને जानते हैं। बराबर हाँ 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 झीणी बात है। बराबर व्यवहार नहीं कर देश भेद से भेद होने पर भी, भेद से भी भेद नहीं है हमने, देश से भेद होने पर भी केवल ज्ञान दर्शन निर्दर्शन कर सब समान है, सब भगवान आत्मा। निगूढ़ ना जी हो, पचेंद्री ना हो, नारकी का हो, देव का, जी आत्मा अंदर है, आत्मा। उसका जो ज्ञान दर्शन तिकारी लक्षण है, द्रव्य संग्रह में आवे છે ભાઈ ઉપયોગ તિકાળી લક્ષણ, દ્રવ્ય સંગ્રહ તિકાળી હો। हाँ તિકાળી ज्ञान दर्शन ध्रुव कायम ज्ञान दर्शन रहने वाला लक्षण, ये वर्तमान पर्याय लक्षण से आत्मा को जानते हैं। हाँ 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 समझ में आया? भाई मार्ग सम्यक दर्शन का अलौकिक है, सम्यक दर्शन बिना सब होता है। हाँ हाँ ये व्रत ने तप ने બધા એકડા વિનાના મીંડા है। एक શું કહેવાય बिंदु, हाँ हाँ ये यहाँ बताते हैं। भगवान तुम तो परमात्मा स्वरूप है ना, परमात्मा प्रकाश है ना, तो परमात्मा स्वरूप ही आत्मा है, और उसका लक्षण अंदर त्रिकाली ज्ञान दर्शन त्रिकाली उसका लक्षण है। हाँ 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 ये लक्ष्म ने लक्षण एनो अभेदनो निर्णय तो पर्याय करते हैं, पण ये पर्याय सीधो पर्याय लक्षण से आप एम नहीं, ये पर्याय त्रिकाली लक्षण है, ये लक्ष्य वस्तु है। हाँ हाँ समझ में आया? मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई।
अनंत काल हुआ, अनंत अनंत काल। मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो। मुनि पण अनंत बैर लिया, दिगंबर मुनि हजारों प्राणी त्याग किया, और पंच महाव्रत 5 सिमती गुप्ती अनंत बैर लिया। मुनि व्रत धार अनंत भय विवेक उपजायो। अनंत पुद्गल प्रावर्तन नवमी विवेक न किया। और आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। उसका अर्थ क्या हुआ कि पंच महाव्रत 5 सिमती गुप्ती जो विकल्प राग है, ये तो दुख है। ये दुख से जानने में नहीं आता आत्मा। भगवान ज्ञान में आनंद स्वरूप प्रभु, ये दुखनी क्रिया से तो रागनी क्रिया है, उससे जाने में नहीं आता। आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो, ऐसा आता है सठाड़ा में। भाषा पर क्या पड़ी दरकार जगत ने। संसार ની એકલી વાતો એમાંથી નંબર હોતા है थोड़ा व्यवहार क्रियाकांड करे, नहीं हो गया। हाँ कहे प्रभु एक बार सुन तो सही। क्यों कैसे देखो क्या निर्लक्षण का कोई भी बड़ा छोटा नहीं। अनंत आत्मा जो है, अनंत आत्मा निरोध से मंत्र सब, एक केवल ज्ञान के और दर्शन से जानने में आता है। लक्षण ये इसका है, ये सब ऐसा सरखा है, सब आत्मा सरखा है। सहज ज्ञान टिकाली उसे पर्यायी केवल टिकाल केवल ज्ञान। ઓમ લક્ષણના બે છે, એક ઉપયોગ તિગાળી લક્ષણ છે। નિરસંગરમાં जीनी बात है भाई। सम्यक दर्शन एक चीज ऐसी है कि अनंत अनंत काल हुआ, अनंत बार मुनि पण लिया, पर सम्यक दर्शन नहीं किया। मुनि बिन व्रत पर सम्यक दर्शन बिना थोथा निकला, 4 गति रखने में आया था। जीनी बात बापू तीथी मुश्किल पड़े थे लोगों ने। हूँ क्या कहता હવે અહીંયા कहते जो केवल ज्ञान दर्शन रूप निर्लक्षण कर सब समान है। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। जो तेरे मन में वितराग निर्विकार आवे आयु हाथ जो पापरिया आई शांति थी समझना बापू। आ तो जिनवर देव 3 लोकना नाथ तीर्थंकर गणधर्व ने इंद्र एक अवतारी नी बीच में आ बात करते थे। भगवान बिराजते महाविधि में, सिमंदर भगवान तो बिराजते अभी। क्या कुंकुंडाचार्य गए थे, 8 दिन रहे थे ત્યાં। कुंकुंडाचार्य बीच में ही 8 दिन रहे थे। संवत 49 साक्षात भगवान विराजते हैं महावेदे में। 500 धनुष का देह है, करोड़ पूर्व का आयुष है। अभी अब्जो वर्ष है ना, अब्जो वर्ष अभी रहेगा। भगवान पास गई थी, 8 दिन रही थी। ત્યાં का राग शास्त्र बनाया है, आपने उद्घाटन किया। ऐसा कहते हैं बात तो ऐसे। હવે क्या कहते हैं धिकाड़ी ज्ञान लक्षण, ये उसका लक्षण पण जानने में कैसे आया कहते हैं। समझ में आया? ये तेरे मन में वितराग निर्विकल स्वसंवेदन ज्ञान रूप
सूर्य का उदय हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तेरे मन में वितराग निर्विकल्प परियाय अंदर वितरागी। हाँ हाँ, स्वसंवेदन, अपना ज्ञान स्वरूप का स्वना अपना संप्रत्यक्ष वेदन। हाँ 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 हाँ, वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा निर्णय कर एम के पण आ पर्याय ऐसी। हाँ हाँ, गजब बात है। दिगंबर संतोनी कथनी જાતમાંની ક્યાંય હે નહીં હે। સંપ્રદાયને મળતી નથી, એમને ઉગે ઉગે વ્યવહાર ક્રિયા ના કરે ના કરે ના કરે, જિંદગી ચાલી જાય થાય। હા, ત્રણ વાત લ્યા કે આત્મા મતિ જ્ઞાનાદિથી જાણવે તો વ્યવહાર નહીં જાય। एक बात, केवल ज्ञान केवल दर्शन त्रिकाली लक्षण से जानना वो नीचे है। दो बात, पर वो जानने में आता है कई पर्याय में भाई। हाँ हाँ, तेरे मन में निर्विकल्प पर्याय वेदन हुआ, उसमें वो तेरे ख्याल में आएगा। हाँ हाँ, तेरे मन में वितराग निर्विकल्प राग रहित वितरागी प्रणति दशा निर्विकल्प अभेद। स्व संवेदन, अपना आत्मा ही स्व अपना वेदन में आने वाला, ऐसी जो ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है, ऐसा ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है, तो ऐसे जान के ज्ञान दर्शन त्रिकाली की आत्मा है। तीनों आया, द्रव्य गुण पर्याय भाई, द्रव्य गुण ने पर्याय। गजब बात है। द्रव्य वस्तु भगवान त्रिकाली आनंद खंड प्रभु, एनो गुण या केवल ज्ञान के दर्शन नहीं लक्षण। पर ये लक्षण से जानने में आता है किसकी पर्याय में? सम्यक दृष्टि को। राग रहित वितरागी पर्याय निर्विकल्प अभेद स्वसंवेदन ज्ञान रूप अवस्था है। ऐसा अब सूर्य जो उदय हुआ हो तो ये जान ऐसा। मानस ने એવું લાગે તો નીચે નીચે પણ નીચે આ શકે એમ કે વ્યવહાર તો વ્યવહાર એ તો असत राग है। तो मति ज्ञान नहीं बढ़िया ने व्यवहार कह दिया। दया राग देश ना परिणाम, दया दान ना व्रत ना भक्ति ना परिणाम तो राग है, उसकी तो बात यहाँ है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, जो आ संतो दिगंबर संतो ना द्रव्य गुण ने पर्याय ना मलावा। भगवान तेरे में तीन चीज है, एक द्रव्य वस्तु त्रिकाली, उसका ज्ञान दर्शन लक्षण ये त्रिकाली। હવે ત્રિકાળીને વર્તમાન નિર્વિકલ્પ પર્યાય में जानने में आता है। ये सूर्य उग्यो तो तेरे ख्याल आया। समझ में आया? વિચનભાઈ આવું જેવું છે। ये આ પાત્રતા જેમાં આત્મા આવી ગયો દ્રષ્ટિમાં, એ પાત્રતા હવે એમાં મોક્ષ થઈ શકશે। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र एम के सम्यक दर्शन ये पात्रता है।
હા 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 એની વાત બાપુ, એને અનંત કાળ त्याग लिया, मुनिपणा लिया, संयम किया, हजारों रानी त्याग किया, पर अंदर मिथ्यात का त्याग न किया। ये बिना सब मिथ्या परिभ्रमण 4 गति में रहा। समझ में आया? अधिकार ऐसा है भैया। बीजी रीते कहिए, दूसरी रीते तो वस्तु है वो वितराग स्वरूप है, और त्रिकाली ज्ञान दर्शन है वो भी वितराग स्वरूप ही है, पर ज्ञान दर्शन से वितराग है, और उसकी परिणति वितरागी हो उसमें वो ख्याल में आता है। आओ धर्म आओ क्या नो क्या क्या है। अरे भगवान बापू, ये वस्तु ऐसी है। जिन देव वितराग देव एम प्रीति तो आचार बोलते हैं। जीवम लखणु दंसन नानु जीणवरेंग भाषियों। हाँ, जीणवर पाठ है ना, जीणवर पाठ में तो मूल पाठ। जीवम लखणु दंसणु भाषियों जीणवरेंग तेन न कीजिए बेऊ તેથી ભેદ ન કર क्यों जय मणि जाओ विहाणु। जो सूर्य तेरे सम्य ज्ञान का बुझा हो तो भेद न कर। हाँ गाथा गाथा ऐसा सब समान जानना कैसे होता है कि तेरे मन में वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप सूर्य उदय हुआ है, तो ऐसे जान। हाँ हाँ हाँ। और मोह निंदा के अभाव से आत्मबोध रूप प्रभात हुआ है। हाँ 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 हाँ। मोह न मिथ्या रूपी निंद्रा, उसके अभाव से आत्मबोध रूप प्रभात हुआ। आत्मबोध रूप आत्मा ऐसा है, उसका बोध हुआ सम्यक ज्ञान में। हाँ हाँ हाँ। કેટલાક ને તો આવા સાંભળી ન હોય જિંદગીમાં નવરા છે। શું ગાથા। उदय हुआ है और मूल निंद्रा ना अभाव थी, मिथ्यात्वना नाश थी, आत्मबोध रूप प्रभात हुआ। प्रभात हो गयो। सम्यक ज्ञान रूपी वितरागी निर्विकल्प ज्ञान का सूर्य जो तेरे उगया हो और मोह निंद्रा का अभाव होकर प्रभात हुआ हो, तो ऐसे जान। આવી વાત છે શેઠ, કોઈ સાંભળી નથી એવી આ વાત છે। વાત સાચી, એવું કૃપા થઈ ગઈ। અરે સત્ય સૂર્ય ભગવાન આત્मा। હા હા। જ્ઞાન દર્શનના લક્ષણથી સૂર્ય પ્રભુ આત્મા ओ निर्विकल्प वितरागी स्वसंवेदन पर्याय से जे तेरे सूर्य उगया हो, प्रभात हुआ हो, तो उसको जाने। सा श्वेतांबर में 32-45 सूत्र करोड़ों श्लोको वाँचो तो आ एक गाथा नो सार क्या है। समझ में आया? ओ गजब के संत हुए, दिगंबर संत हुए। हाँ श्वेतांबर ना तो करोड़ों श्लोको जोया थे। हाँ एक गाथा जे छे एनो एक भावनी गंजन मळी गई।
આ તો સનાતન જૈન દર્શન. જી હા હા હા. જી गजब बात है भाई. બરાબર બરાબર कहते हैं कि ज्ञान दर्शन त्रिकाली लक्षण से ये लक्षण द्रव्य का वस्तु का, पण जिसको निर्विकल वितरागी पर्याय प्रकट हुई है, सूर्य उगया है, उसमें जानने में आता है. हाँ हाँ हाँ. हो कारण परमात्मा. બરાબર प्रश्न किया ना भाई, कारण परमात्मा आत्मा है तिकाया हो तो क्या कार्य क्यों न हुआ? पर कहते कि कार्य में निर्विकल्प दर्शाते प्रकट करके है ऐसी मानता हो उसको प्रकट होता है. हाँ हाँ. समझ में आया महाराज बापा. अनंत जन्म मरण रहित, अनंत अनंत आनंद मुक्त दशा, उसका उपाय कोई अलौकिक है. બરાબર हाँ. ओहो. જેને व्यवहार रत्नत्रय है, दया दान व्रत भक्ति देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि, ये तो राग है. राग तो व्यवहारिक लक्षण नहीं. શું કઈ समझ में आया? व्यवहारिक लक्षण नहीं, उससे जानने में आता है लक्षण नहीं उसका. हाँ 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 हाँ. ये जो बात करते हैं ना, व्यवहार लक्षण हो तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो व्यवहार लक्षण है. हाँ हाँ. और त्रिकाली ज्ञान दर्शन स्वभाव भगवान चैतन्य बिंब परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा आत्मा. હાજી ऐसे निर्विकल वितरागी पर्याय संवेदन जो तेरे सूर्य उगया हो और मिथ्याद का नाश होकर प्रभात हुआ हो, तो ये देखे. हाँ हाँ हाँ. शास्त्र में एक नहीं आ. हाँ हाँ. शास्त्र में है, उसके बात चलती है. तो तुम सबों को समान देखो. हाँ हाँ हाँ. राग रहित वितरागी पर्याय में निर्विकल्पता जो तेरे प्रगति हो, तो इससे तुम सब जीव को समान देख, सरखा देख. बड़ा भगवान स्वरूप है. हाँ 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 हाँ. समझ में आया? जैसे यद्यपि 16 वालों के सोने सब समान व्रत है. 16 वालों सोनू सोना होता है, 16 वाला कहते हैं. याद नहीं. 16 वान है, 16 वानी के सोने सब समान व्रत है. 16 वालों सोनो हो, 5 रुपया बार 5 रुपया बार 5 रुपया बार 5 रुपया, ऐसा 1000. तो इस तो भी उन सुवर्ण राशियों में से एक सुवर्ण को ग्रहण किया तो उसके ग्रहण करने से सब स्वर्ण साथ नहीं आते हैं. हाँ हाँ हाँ. न्याय आपे थे कि समान सब है तेरी दृष्टिपान, जो तेरे ग्रहण में आया आत्मा, वितराग निर्विकल्प सबसे ग्रहण में आया हो आत्मा, उसे सब ग्रहण में नहीं आता. समझ में आया? बापू आ तो त्रिलोक नो नाथ. જેને ઇન્દ્રુ જ એકા અવતારી, જેને ગલુડિયા એટલે पिल्ला सभा में सुने, इसकी वाणी है तो. બરાબર हाँ हाँ.
दिगंबर संतो आरतिया होकर जगत केवल गिना का माल की बात करते हैं। ओ धन्य भाई જ્યારે આ વાણી निकली परमात्मा ની धन्य भागी रहने तो सुनने में मिला। हाँ ये कहने में आता है घनी गंभीरता दिगंबर संतों ने एक कड़ी पद जिनवरे ऐसा कहा कि ज्ञान दर्शन एમાં જ્ઞાન દર્શનના પર્યાય નહીં। टिकाड़ी ज्ञान दर्शन ये आत्मा का लक्षण एम जीणवरे भाषु तेन न कीजिए भेवू એ કારણે આત્મામાં ભેદ ન કરકે આ આત્મા 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 બીજાત્મા आत्मा सब आत्मा एक सरखा है। पर किसको जिसकी मणि मन में विभात सूर्य उगा हो प्रकाश हुआ हो चैतन्य का है मणि जाओ विहाओ मन में थयो विभात प्रभात सूर्य उग्या हो जिसके राग रहित निर्विकल्प सम्यक ज्ञान सूर्य दशा प्रकट हो तो ये तेरे प्रभात हुआ हो अंधकार का नाश हुआ है एम कहू ने मोह निंद्रा क्या मोह निंद्रा नो भाव तो सब जान छते ऐसा होने पर भी सब सरखा है। पान भीतरागी पर्याय से जब जानने में आता तो ग्रहण एक आत्मा अपना ही ग्रहण में आता है। समझ में आया? एम कहते हैं वितरागी पर्याय से ग्रहण में आता है तो सब सरखा होने पर भी अपना ही आत्मा ग्रहण में आता है। गंभीर 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 वितराग वाणी जैन दर्शन कहो कि दिगंबर दर्शन कहो दूसरी चीज क्या है नहीं। उसकी गंभीरता की संप्रदाय में पड़ा उसको खबर नहीं है। गजब बात। प्रभु शू कहते हैं कि तेरी वितरागी निर्विकल्प चैतन्य सूर्य जो प्रकट हुआ हो और मोह निंद्रा का अंधकार का अभाव हुआ हो प्रभात हुआ हो तो सबको समान जान। एक बात पर सबको समान जानने में निर्विकल्प वितरागी पर्याय में ग्रहण तो एक अपना आत्मा का ही होता है। संदीप भाई जीणु जा બધું તમારા જવાહરાતમાં આ તો માર્ગ એવો છે બાપા શું કહીએ। क्या पड़ी जगत ने आत्मा શું છે ને ક્યાં જાઉં। व्यवहार ना करो ना करो ना करो भक्ति करो यात्रा करो व्रत पालो अप्पा करो अरे भगवान ये बापू ये तो रागनी क्रिया है भाई। ये रागनी क्रिया थी आत्मा न जनाय। अरे मति ज्ञान थी जाना एम कहूं ये व्यवहार એને ટીકાળી જ્ઞાન દર્શન થી જાણવામાં આવે વર્તમાન વિતરાગી પર્યાય થી समझ में आया। सुजानमल जी शर्त काटी थी आपके वितराग निर्विकल्प ये आयु नहीं
एक स्वरूप बड़ी जरूरी है। ये वस्तु में जन्म में आता है, राग से जन्म आता है। व्यवहार रत्न तरीका राग है, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा भक्ति पूजा ये से जन्म आते तो राग है। ये जीव का लक्षण है। हाँ हाँ कहते हैं सुवर्ण राशियों में से एक सुवर्ण को ग्रहण किया जाता है, उसके ग्रहण करने से सब सुवर्ण साथ नहीं आते हैं। 16 वाला सरका सब है, पर 16 वाला में एक 16 वालू पकड़ में आया तो ये पकड़ में आया, सब न आया। एम सब जीव समान होने पर भी वितरागी पर्याय में स्वद्रव्य आत्मा अनुभव में आता है, एक ग्रहण में आता है, पर सब समान होने पर भी सब नहीं आते उसमें। हाँ 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 आओ मार्ग। ओ वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिन चंद्र सूर्य जिन चंद्र એટલે શીતળ સ્વભાવથી ભરેલ અકસાય સ્વભાવ એવો સૂર્ય પ્રકાશ તેનો એ ભગવાન ચૈતન सूर्य जिन चंद्र एम फरमाते हैं, एम कहते हैं। भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु। तेरा त्रिकाली ज्ञान लक्षण से लक्षण जी आत्मा का उसका निर्णय तेरी निर्विकल वितरागी पर्याय में आता है। तो निर्विकल वितरागी पर्याय जो प्रकट हुए तो सबको समान जान, समान जानने पर भी निर्विकल्प पर्याय में तेरा आत्मा एक किला ग्रहण में आता है। है क्या ही मोड़े नहीं आई बात। वितराग जैनवीर देव एनो मूल मार्ग सांभळो जीननो रे। हाँ जीननो मार्ग मूल है। अरे रे लोको एमे ये नीचे छे, नीचे छे, नीचे एम करी करीने अनादर करीने। हाँ हाँ समझ में आया। हो ये गाथा में कितनी चीज है, गजब बात है। उसी प्रकार यद्यपि केवल ज्ञान दर्शन लक्षण सब जीव समान है, तो भी एक जीव का ग्रहण करने से सबका ग्रहण नहीं होता। देखो समझे। हाँ 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 चैतन्य निर्मल वितरागी पर्याय में सब जीव समान जानते हुए भी ग्रहण में ते की आत्मा अपनाता है। हाँ 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 टीका टीका है। हाँ सिद्धांत कहवाए वितराग का वाणी का सार के है। हाँ 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 क्योंकि प्रदेश सबके भिन्न भिन्न है। હવે सिद्धांत की तरफ अपना भगवान ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित निर्विकल्प वितरागी पर्याय में होता है, तो वही निर्विकल्प पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में, सम्यक ज्ञान की पर्याय में एकला स्व का ग्रहण होता है। सरखा होने पर भी पर का ग्रहण नहीं होता है। हाँ हाँ क्योंकि प्रदेश भिन्न है, भाव सरखा है एम कहते हैं। ज्ञान दर्शन लक्षण से सब सरखा है, छता प्रदेश भिन्न है। हाँ हाँ हाँ
કહો દેવજીભાઈ હું ક્યાં હતું તમારે ત્યાં ગામડામાં? બીજે નતું, ભારતમાં નહોતું. સાચી વાત. હા હા હા, કેટલા મૂલો ને क्या? क्योंकि प्रदेश सबसे भिन्न भिन्न है. ये भगवान बदा ज्ञान रक्षण लक्षित ज्ञान रक्षण वाला सब सरखे, ऐसा होने पर भी सब द्रव्य का सब आत्मा का प्रदेश क्षेत्र भिन्न है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? है अंदर है कि नहीं? મેળવણી કરવા દેવા. હા, એમાં લોકો છે ને મેળવણી સ્થિતિ વસ્તુની સ્થિતિ છે. હા, અહીં તો ભગવાન આત્મા देवाणी क्रिया से भी जानने में तो आता नहीं कि तो जा रहे. दयादान व्रत भक्ति यात्रा का भाव से भी जातना हमें आते हैं, क्योंकि ये तो राग है. मति ज्ञान से जानने में आता है लक्षण कहना, वो भी व्यवहार है. हाँ हाँ हाँ. और टिकाड़ी ज्ञान दर्शन में ध्रुव ना ध्यान में लगा कर निर्विकल्प वितरागी पर्याय में ध्रुव का ध्येय बनाकर विषय बनाकर ध्यान करना, उसका चैतन्य सूर्य में वो बान आता है. પાછો આ ઘરે વાંચવું થોડું, આઈને ન રાખવું. શેઠ શું કહ્યું? ઘરે વાંચના થોડા, એને એના આઈને ન રાખવું. પણ એને ઉડાયા હે કે નહીં? હે કે નહીં? सब जीव समान है कि नहीं है, छता उड़ाया प्रदेश भेद है न अपना स्वरूपी ग्रहण में आता है. हाँ हाँ हाँ, इससे यह निश्चय हुआ कि यद्यपि केवल ज्ञान दर्शन लक्षण से सब जीव समान है जोયું, तो भी प्रदेश सबके जुदे जुदे, ये उसका तात्पर्य रस है. अपनी निर्विकल्प वितराग पर्याय में सब समान मानना, ऐसा होने पर भी वितरागी पर्याय में स्वका ही ग्रहण होता है, पर का ग्रहण होता है. એ રીતે 98મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. जयते